Student, how are you? Welcome to all of you once again in our chapter 2nd solution 12th class. Okay, we will start this chapter and we done our two videos related this chapter. In our last videos we will discuss about the molality, normality, mole fraction, mass, percentage and their numericals, and today we are going to discuss about the types of solution system. Most important topic, that is today we are going to discuss, that is Raoult's law. Okay student, we will discuss all the deviation, positive deviation, negative deviations, ideal solution, non-ideal solution, their examples, their conditions, their enthalpies, their entropy. Okay, so be with video and like and share also. Okay, so we are going to start. Firstly we will discuss how many types of solution system. So student, there are three types of solution system. You can see on the screen, one is liquid plus liquid system, another one is the liquid plus solid system, third one is liquid plus gas system. In our today's video we will discuss liquid liquid system. Okay, what is the meaning of the liquid liquid system, student? The meaning of the liquid liquid system: a system in which solvent and solute both are present in liquid state. Okay, explained by Raoult's law. What is Raoult's law now? What is the Raoult's law? What is the statement of Raoult's law? You can see here on the screen. It states that vapor pressure of any component, volatile component, we are taking volatile component. What is the meaning of volatile component? Volatile component are those component which easily vaporize, ठीक है, on giving temperature of solution is directly proportional to its mole fraction. तो मैंने क्या बताया, मैंने ये बोला कि वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, यानी किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर, ठीक है, कंपोनेंट कैसा होना चाहिए, वोलेटाइल कंपोनेंट, सॉल्यूशन की मतलब सॉल्यूशन में जो भी कंपोनेंट आप काम में ले रहे हैं उसका वेपर प्रेशर उसकी उस कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. यू कैन सी हियर, इफ वी कंसीडर अ सिस्टम that is contain two component A and component B. So what is the vapor pressure of component A in the solution? That is directly proportional to XA. Here XA equals is a mole fraction of component A. Now if we discuss about the vapor pressure of component B, that is directly proportional to XB. XB is the mole fraction of component B. If we replace the proportion sign, then we are getting a one constant term, that is P naught A and P naught B. Now what about the P naught A and P naught B? These are pure vapor pressure of component A and component B. We will discuss all the things. First आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, द वन क्वेश्चन इज अराइज, व्हाट इज वेपर प्रेशर. वेपर प्रेशर क्या होता है? तो लिसन केयरफुली, मैंने यहाँ लिखा हुआ नहीं है. इफ़ यू वांट यू कैन राइट इन योर रफ नोटबुक व्हाट इज वेपर प्रेशर. Vapor pressure is a pressure applied by vapor on the surface of liquid in its equilibrium state. So now what is the vapor pressure? Vapor pressure is a pressure of vapor which is which is created on the surface of liquid by vapor in its equilibrium state. Is that clear to student? What is liquid liquid system? What is Raoult's law? It's most important law. कई बार इसका statement भी उन मार्क्स में पूछ लेते हैं. So what is Raoult's law? It states that वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट चाहिए, वोलेटाइल, ऑफ सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन. नाउ मैंने आपको बताया था व्हाट इज पी ए इज वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, पी बी इज वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी, पी नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी, पी नॉट बी, एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए एंड एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी. नाउ आई थिंक ऑल इज क्लियर. अब हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन. देखिए हमने टाइप्स ऑफ सोल्यूशन सिस्टम के बारे में बात करी, तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सिस्टम, लिक्विड लिक्विड, लिक्विड प्लस सॉलिड एंड लिक्विड प्लस गैस. एंड इन आवर टुडेज वीडियो, एज यू नो, वी आर डिस्कसिंग अबाउट लिक्विड लिक्विड सिस्टम, ठीक है. एंड इन लिक्विड लिक्विड सिस्टम वी आर डिस्कसिंग राउल्ट्स लॉ. हमने देखा राउल्ट्स लॉ में आइडियल सोल्यूशन की बात करी. हमने एक ऐसे सोल्यूशन की बात करी जिसके सारे कंपोनेंट, ठीक है, उसकी मतलब कंपोनेंट की जो मोल फ्रैक्शन है वो उनके वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, ठीक है.
अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन भी दो टाइप के होते हैं, आइडल सोल्यूशन एंड नॉन आइडल सोल्यूशन। हाउ वी डिफाइन द आइडल सोल्यूशन, हम कैसे बात करेंगे कि आइडल सोल्यूशन कौन से होते हैं, एंड व्हाट इज द कंडीशन ऑफ आइडल सोल्यूशन, एंड इफ वी आर प्लॉटिंग द ग्राफ बिटवीन द वेपर प्रेशर एंड द मोल फ्रैक्शन, नाउ व्हाट इज द मतलब विच लाइन वी आर गेटिंग, ठीक है, हमें किस तरीके से ग्राफ मिलेगा। तो आप यहाँ देखें, बेसिकली देखें आइडल सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन विच फॉलो द राउल्ट्स लॉ, ऐसे सोल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने राउल्ट्स लॉ पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर उसकी मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। माय राइट। अब यहाँ हमने कहा ऐसे सॉल्यूशन, ठीक है, जिनमें सारे कंपोनेंट का वेपर प्रेशर उनकी मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो आइडियल सॉल्यूशन रहेंगे। ओके, और स्टूडेंट ये तभी पॉसिबल है जब जो भी कंपोनेंट हम सॉल्यूशन को बनाने के लिए मिक्स कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो भी कंपोनेंट हम सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए मिक्स कर रहे हैं, उन कंपोनेंट के बीच में किसी तरीके का कोई इंट्रैक्शन ना हो। इट मीन्स कोई किसी भी तरीके का कोई वॉन्डरल फोर्स ना हो, किसी तरीके का कोई आयनिक फोर्स ना हो, ठीक है, किसी तरीके का कोई डायपोल फोर्स हमने पढ़ा था जब हमने 11th क्लास में अपना 5th चैप्टर डिस्कस किया था, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स, आयन डायपोल फोर्स। तो दीज ऑल फोर्सेस एब्सेंट, ठीक है। इट मीन्स टू से, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ भी है, if we are preparing a solution of component A and B, suppose there are two component A and B, after mixing there is no interaction between component A and component B। कहने का मतलब अगर हम component A और component B से एक solution बना रहे हैं, तो solution बनने के बाद, ठीक है, component A और B में कोई interaction नहीं होगा, यानी कि A plus B equals to AB, ठीक है, कोई इंट्रैक्शन नहीं है। अब बात करते हैं आगे, एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं। अब देखिए आइडल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो जितने भी ऐसे सिस्टम, मतलब जब हम बनाएंगे तो ऐसे दो लिक्विड जिनमें किसी तरीके का कोई इंट्रैक्शन ना हो पाए, तो बेंजीन प्लस साइक्लोहेक्सीन हमने ले लिया, ठीक है, साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेप्टेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, टिन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। और हम ये कह सकते हैं ऑल दी सॉल्यूशन विच इज़ नॉट हैविंग एनी इंट्रैक्शन बिटवीन कंपोनेंट, ऐसे सॉल्यूशन जिनकी मिक्सिंग पर कंपोनेंट के बीच में किसी तरीके का कोई इंट्रैक्शन नहीं है, दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन दी आइडल सॉल्यूशन। होप यू अंडरस्टूड। नाउ व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द आइडल सॉल्यूशन। सी स्टूडेंट, अगर हम आइडल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं और मैंने बताया कोई इंट्रैक्शन ही नहीं है, तो जब कोई इंट्रैक्शन ही नहीं है तो जो एंथैल्पी पहले थी सॉल्यूशन बनने से पहले प्योर कंपोनेंट्स की, वही एंथैल्पी बाद में होगी। सो देयर विल बी नो चेंज इन एंथैल्पी। इट मीन्स टू से डेल एच बिकम्स ज़ीरो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल? डेल मीनिंग स्मॉल चेंजेस, एच मीन्स एंथैल्पी। एंथैल्पी हमने 11th में भी पढ़ा था। व्हाट इज एंथैल्पी? इट इज़ एनर्जी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ओके स्टूडेंट, नाउ अब इफ देर इज नो इंट्रैक्शन, इट मीन्स टू से डेल वी बिकम्स जीरो, यानी कि चेंज इन द वॉल्यूम बिकम्स जीरो, बिकॉज कोई इंट्रैक्शन ही नहीं है, कोई अट्रैक्शन ही नहीं है, कोई रिपल्शन ही नहीं है कंपोनेंट्स के बीच में। तो ए और बी को मिक्स करने से पहले और मिक्स करने के बाद दोनों का वॉल्यूम सेम ही रहना है। डेल एस बिकम्स जीरो स्टूडेंट। डेल एस, व्हाट इज एस? एस इज द एंट्रोपी, यू नो दिस थिंग, ठीक है, एंड डेल मीन्स चेंज। तो चेंज इन एंट्रोपी विल बी पॉजिटिव, ठीक है, एंट्रोपी में चेंज पॉजिटिव होगा क्योंकि दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं, तो डिसऑर्डर तो इंक्रीज होगा ही होगा। डेल जी बिकम्स जी नेगेटिव। जी इज़ द गिब्स फ्री एनर्जी, स्पॉन्टेनिटी, ठीक है। अब नाउ व्हाट इज द थिंग, तो मैंने लिख दिया, ये एग्जांपल लेके लिखा है कि दो कंपोनेंट सिस्टम, बाइनरी कंपोनेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं, ए प्लस बी, है ना, एंड आफ्टर द मेकिंग द सोल्यूशन दैट इज ए बी, तो बोथ आर इक्वल। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ व्हाट इज द ग्राफ? ग्राफ ऑफ आइडियल सोल्यूशन। सी हियर स्टूडेंट, इट्स इंपॉर्टेंट थिंग, आप इसे ध्यान से देखें। देखिए यहाँ लिखा हुआ है पी नॉट ए, ये चीज़ है पी नॉट बी, एक्स ए एक्स ए, एक्स बी जीरो एक्स बी जीरो। अब बेसिकली जब भी हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है तो हमारे माइंड में क्वेश्चन ये चलता है, यार एक लाइन तो नीचे है, एक लाइन ऊपर है, तो देखिए ऊपर किसका होगा? जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा वही चीज़ ज़्यादा तक जाएगी, ठीक है। अब वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा होगा, तो वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी थिंग्स। अब ये आगे की चीज़ होती है, हायर चीज़ में जब आप जाएंगे तो आपको कुछ समझ में आ जाएगी कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। अभी आप सीधा देखें, यहाँ हमने देखा है वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। इस पोर्शन पे, इस पोर्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ एक्स ए मैक्सिमम है, ठीक है, क्योंकि पी ए मैक्सिमम है, और एक्स ए मैक्सिमम है तो यहाँ एक्स बी का कुछ है ही नहीं, ये तो प्योर कंपोनेंट है ए का मिक्सिंग से पहले। सिमिलरली ये बी
का वेपर प्रेशर होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बी का कंपोनेंट है और एक्स से 0 है। धीरे धीरे हमने इनको मिक्स किया तो ये यहाँ बीच में आना शुरू हुए। अब मिक्स करने के बाद यहाँ बना टोटल पी एस। क्या बना स्टूडेंट? पी एस। अब क्योंकि पी एस जो बन रहा है वो भी हमारा किसके बराबर होगा? पी ए प्लस पी बी के। रीज़न ऐसा क्यों होगा? देखो ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि जो हमने कंपोनेंट मिलाए हैं उनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है। हम आइडियल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी स्टूडेंट्स कि आइडियल सॉल्यूशंस आर दोज सॉल्यूशन इन विच देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द कंपोनेंट, ठीक है, मिक्सिंग कंपोनेंट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पी बी इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा? एक्स बी पी नॉट बी, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एंड पी ए इक्वल्स टू एक्स ए पी नॉट ए. Is that clear? If you are getting any problem, you can write comment in comment box. Okay, I will give you an answer. Now see other things. Non ideal solution. अभी हमने ideal solution की बात करी, अब हम बात करेंगे non ideal solution की कि what is the non ideal solution, ठीक है। So see here, solution in which component interact after mixing, मतलब मिक्स होने के बाद उनमें किसी तरीके का अट्रैक्शन हो जाए, उनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करें या मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को रिपेल करें, वॉल्यूम इंक्रीज हो, वॉल्यूम डिक्रीज हो, ठीक है, एंथैल्पी में किसी तरीके का कोई चेंज हो, एनर्जी में चेंज हो, ठीक है, आफ्टर मिक्सिंग। सो दीज टाइप ऑफ द सोल्यूशन इज नॉन आइडियल सोल्यूशन। एंड लिसन केयरफुली स्टूडेंट, these not follow the Raoult's law. तो we can say also non-ideal solutions are those solution, ठीक है, which not follow Raoult's law. What is a Raoult's law? मैंने स्टेटमेंट आपको बताया था, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ Raoult's law का स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू द Raoult's law, any component of the solution, ठीक है, vapor pressure of any component of solution is directly proportional. Vapor pressure of any component of solution is directly proportional to their mole fraction. Okay. Now, vapor pressure of non-ideal solution is not the sum of component vapor pressure. बात तो क्लियर है, क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन में तो सम के बराबर होता था, एल्जेब्रिकल सम के। रीज़न क्योंकि वहाँ पर जो थी, अगर हम बात करते थे तो वो उस चीज़ को फॉलो कर रहा था, उनमें कोई इंट्रैक्शन नहीं था, या इंट्रैक्शन है ही नहीं। तो स्टूडेंट सी हियर, ये डज नॉट इक्वल्स टू का साइन है, थोड़ा सा सिंबल ऐसे बन गया है, ये डज नॉट इक्वल्स टू का साइन है। तो पी एस मीन्स है पी एस इज इक्वल्स टू सॉल्यूशन वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर की बात करिए। अब ये भी हमारा डज नॉट इक्वल्स टू का साइन है, ए प्लस बी, ए बी सिस्टम के बराबर नहीं होगा। अब दो तरीके के डेविएशन होते हैं। डेविएशन का मतलब, अब जब हम बात कर रहे हैं कि नॉन आइडियल सोल्यूशन की, भाई जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे, तो कैसे फॉलो नहीं करेंगे? आइडियल में तो हमने कहा था कि डेल एच बिकम्स 0। अब यहाँ दो पॉसिबिलिटी है, एंथैल्पी में पॉजिटिव चेंज हो, एंथैल्पी में नेगेटिव चेंज हो, वॉल्यूम में पॉजिटिव चेंज हो, वॉल्यूम इंक्रीज हो, वॉल्यूम डिक्रीज हो। क्योंकि इंट्रैक्शन दो तरीके का हो सकता है, मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को रिपेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कब होगा, क्या चीज़ होगी इनमें? तो देखिए दो तरीके के डेविएशन है, वन इज़ पॉजिटिव डेविएशन, अदर वन इज़ नेगेटिव डेविएशन। अगर हम पॉजिटिव डेविएशन की बात करते हैं स्टूडेंट, तो सी हियर, पॉजिटिव डेविएशन में ए प्लस बी सिस्टम, ठीक है, यानी कि प्योर कंपोनेंट का सम, वेपर प्रेशर ऑफ द, अगर हम प्योर कंपोनेंट की बात कर रहे हैं तो प्योर कंपोनेंट का इंट्रैक्शन यानी ए और बी का इंट्रैक्शन इज़ मोर एज कम्पेयर टू ए बी। कहने का मतलब, सॉल्यूशन बनने से पहले एक कंपोनेंट ए था, दूसरा बी था, ठीक है। तो कंपोनेंट ए में ए इंट्रैक्शन है, ए और ए के बीच इंट्रैक्शन, कंपोनेंट बी में बी और बी के बीच इंट्रैक्शन है, ठीक है। ये इंट्रैक्शन ज़्यादा होगा बने हुए सॉल्यूशन जिसमें ए और बी है उनसे। तो इस तरीके का डेविएशन पॉजिटिव डेविएशन कहलाएगा। एम आई क्लियर? नाउ द नेक्स्ट थिंग, नेगेटिव डेविएशन क्या होगा? नेगेटिव डेविएशन में कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी के बीच का इंट्रैक्शन, ठीक है, से ज़्यादा होगा ए बी का इंट्रैक्शन, यानी कि सॉल्यूशन बनने के बाद इंट्रैक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। अब सॉल्यूशन बनने के बाद इंट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन होगा, वो जल्दी बॉयल नहीं होंगे और वेपर भी जल्दी नहीं बनेगी। वो हम आगे डिस्कस करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा अभी। देखिए अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे पॉजिटिव डेविएशन। तो व्हाट इज़ पॉजिटिव डेविएशन? इट इज़ अ टाइप ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन इन विच वेपर प्रेशर ऑफ सम ऑफ कंपोनेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सम ऑफ कंपोनेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सम ऑफ कंपोनेंट, सम ऑफ कंपोनेंट इज़ लेस आएगा। यहाँ थोड़ा सा इंप्रूव कर लेना कि गलत लिखा हुआ है, यहाँ क्या आएगा स्टूडेंट, 1 मिनट।
यहाँ आपको लिखना है लेस, इस मोर की जगह आएगा लेस एज कम्पेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। देखो क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन में मैंने आपको पढ़ाया कि कंपोनेंट ए एंड बी इंट्रैक्शन इज मोर एज कम्पेयर टू ए बी। ठीक है, अब ए बी से ज़्यादा होगा तो ए बी यानी कि जो सोल्यूशन बना है उसका वेपर प्रेशर कम है, इसका मतलब वो जल्दी ही वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, कम टेम्परेचर भी देने पे ही वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जल्दी वेपर में कन्वर्ट होगा तो प्रेशर भी ज़्यादा क्रिएट करेगा। ठीक है, ठीक है भाई, जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो क्या करेगा, प्रेशर भी ज़्यादा क्रिएट करेगा, है ना। अब देखिए नेक्स्ट, इट मीन्स नाइट्रेट सॉरी इंट्रैक्शन आएगा, ये थोड़ा सा गलत दिखा हुआ है, नाइट्रेशन नहीं है, इंट्रैक्शन आएगा बिटवीन ए एंड बी बी इज़ मोर एज कम्पेयर टू ए बी। ठीक है, अब बात करते हैं कंडीशंस की। तो कंडीशन देखें, डेल एच पॉजिटिव हो गया, डेल बी पॉजिटिव, डेल एस पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि एंथैल्पी में चेंज प्लस की तरफ जाएगा, एंट्रोपी में चेंज तो प्लस होता ही होता है, और वॉल्यूम भी प्लस, वॉल्यूम इंक्रीज होगा उस चीज़ का। डेल जी जो होगा नेगेटिव रहेगा। इज इट क्लियर, एम आई क्लियर, आई थिंक ओके। नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट थिंग, अब हम इसका ग्राफ देखेंगे वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच। अब क्योंकि इंक्रीज हो रहा है ना, तो आप देखेंगे ये जो है ये थोड़ा सा बढ़ गया है, या डेविएशन दिख रहा है, ये जो पॉइंट है, ये जो आपको डिफरेंस दिख रहा है, डैश डैश लाइन जो है वो आइडल सॉल्यूशन के लिए है, और ये जो छोटा सा डिफरेंस दिख रहा है ये आपका डेल पी है, यानी कि कितना वेपर प्रेशर में चेंज आया है। ठीक है, कितना वेपर प्रेशर में चेंज आया, अभी हम आगे पढ़ेंगे इस चीज़ को। तो यहाँ ये पी नॉट ए का सेम, एक्स भी यहाँ जीरो था, एक्स ए यहाँ जीरो था क्योंकि यहाँ बी का था। अब धीरे धीरे मिक्स किया तो ये तो आइडल सॉल्यूशन को डैश डैश करके दिखाया जहाँ बराबर होना चाहिए था, पर यहाँ बराबर नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने इस चीज़ को ऐसे दिखाया है, इसका मतलब ये पॉजिटिव डेविएशन हुआ है। ठीक है, वेपर प्रेशर जो हुआ है वो क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। अब आई क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट, अब माइंड में आ रहा होगा यार एग्जाम्पल्स क्या हैं, तो एग्जाम्पल्स आप देखें यहाँ पर जिनमें थोड़ा सा मतलब अट्रैक्शन होगा, लाइक बेंजीन प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड, एल्कोहल प्लस वाटर, ईथर प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड, ओके एक्सेट्रा। ये हमारे किसके एग्जाम्पल होंगे, पॉजिटिव डेविएशन के। अब हम आगे बात कर लेते हैं नेगेटिव डेविएशन की। तो देखिए नेगेटिव डेविएशन क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ सोल्यूशन इंट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी बी इज़ लेस एज कम्पेयर टू ए बी, यानी कि ए और बी बी यानी मिक्स होने से पहले जो कॉम्पोनेंट है उनका इंट्रैक्शन कम होगा, किसके कंपैरिजन में, ए बी के कंपैरिजन में। इज इट क्लियर, यानी कि अब हम बात करते हैं वेपर प्रेशर की। अब जब इंट्रैक्शन कम है किसका, ए और बी का, तो वो जल्दी ही वेपराइज हो जाएंगे, तो उनका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यानी कि हम ये कहते हैं कि पी ए, ठीक है, पी एंड पी बी इन दोनों की सम का जो वेपर प्रेशर है वो ज़्यादा होगा सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज लेस एज कम्पेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ कॉम्पोनेंट ए एंड बी। एम आई क्लियर। कंडीशन की बात करते हैं, तो कंडीशन देखें आप क्या है। अब क्योंकि यहाँ पर कम हो रहा है तो डेल एच जो है दैट्स बिकम्स नेगेटिव। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, डेल बी बिकम्स नेगेटिव, डेल एस कभी नेगेटिव नहीं होगा अभी। ठीक है, डेल एस यानी जो एंट्रोपी चेंज है वो हमारा क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा, कभी तो नहीं, मतलब इन रिएक्शन में नहीं हो सकता। और गिब्स फ्री एनर्जी चेंज तो स्पॉन्टेनिटी तो चाहिए नेगेटिव। इंट्रैक्शन मैंने आपको बताया ही था, ए बी के अंदर ज़्यादा है ए और बी बी के कंपैरिजन में। तो अब हम ग्राफ देख लेते हैं इसका स्टूडेंट की, इसका ग्राफ क्या है देखिए आप, सेम ये चीज़ तो देखिए वही रहेगी, है ना, पी ए यहाँ है, पी बी यहाँ है, पी बी का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, किसका ज़्यादा होता है, इसलिए मैंने ऊपर लाइन करी है। अब देखें ये जो डैश डैश लाइन है ये आइडल सॉल्यूशन को दिखा रही है, और ये जो नीचे आपकी सॉलिड लाइन बनी हुई है ये दिखा रही है नेगेटिव डेविएशन को। ये जितना डिफरेंस है, ये डिफरेंस बता रहा है कितना वेपर प्रेशर का डिफरेंस आया है। ठीक है, वेपर प्रेशर कितना कम हुआ है। इज इट क्लियर, ये ए का, ये बी का, और ये पूरे टोटल सॉल्यूशन का जो बीच में लिया हमने सम करके। अच्छा, ये सम हमने क्यों किया है, यहाँ हमने डाल्टन का प्रेशर लॉ लगाया है, क्योंकि जब हमने पढ़ा था 11th क्लास में कि इफ़ वी कंसिडर अ सिस्टम देयर विल बी नो, हम ये कहते हैं कि इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है। सो द वेपर प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज द एल्जेब्रिकल सम ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ कॉम्पोनेंट। ठीक है, तो वही लॉ लगाकर हम यहाँ पर इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा। ठीक है,
नेक्स्ट अब हमारे पास बात आती है कि नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल्स क्या होंगी। मैंने स्लाइड इंक्लूड नहीं करी है नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल्स की, ठीक है, मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। 1 मिनट आप रुकें, आप चाहें तो लिख लें वीडियो को पॉज करके। व्हाट इज़ द नेगेटिव एग्जांपल्स ऑफ नेगेटिव डेविएशन, तो आप लिखें एसिड प्लस वाटर, लाइक H2SO4 प्लस H2O, ठीक है, H2SO4 प्लस H2O, HCl प्लस H2O, ठीक है, एसिड प्लस वाटर सिस्टम। एक चीज़ आपको यहाँ ध्यान देने लायक है, देखिए लास्ट वीडियो में जब हमने बात करी थी, इन विच वी डिस्कस दैट बेंजीन प्लस CCl4, यानी बेंजीन एंड टेट्रा कार्बन टेट्राक्लोराइड इंक्लूडिंग इन पॉजिटिव डेविएशन। बट लिसन केयरफुली स्टूडेंट, ये बहुत कंफ्यूज करता है। बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म, बेंजीन प्लस CHCl3, इट्स इंक्लूडेड इन नेगेटिव डेविएशन। ये किस में आता है? ये आता है नेगेटिव डेविएशन में। ओके, तो सारे हम ये कह दें एसिड वाटर सिस्टम आ जाएगा, ठीक है, एंड बेंजीन प्लस CCl3, ईथर प्लस CHCl3, ठीक है, एसीटोन प्लस CHCl3, ये सब आपका किस में आएगा? ये आपका आएगा नेगेटिव डेविएशन में। ओके, इफ़ यू आर गेटिंग एनी प्रॉब्लम, ठीक है, इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल गिव योर आंसर, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब दिस channel because if you subscribe you are getting the notification of the all next videos, and share as more as possible, so all your friends get this video. Okay, and thanks for watching.